ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. क्या है क्वेश्चन, थोड़ा और समझें कि कुछ स्टूडेंट्स को रोज में स्टैंड कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं. तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. लेट्स से 12 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 3 3 की रो बना लेता हूँ. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है, ये मैंने पोजीशन कर ली. तो 3 और 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये हो गए 3. ठीक है, ये 3 स्टूडेंट्स हो गए एक रो में. तो ऐसे कितनी रोज हैं? 1 2 3 4. तो देयर आर 4 रोज. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? हर रो में 3 है, और नंबर ऑफ रोज कितनी है? 4. ठीक है. इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी 1 रो लेस. इसको समझाने के लिए अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ, हर रो में एक एक स्टूडेंट्स बढ़ा देता हूँ. एक एक स्टूडेंट बढ़ा दिया मैंने. तो अब हर रो में एक एक स्टूडेंट बढ़ गया, मतलब 4 स्टूडेंट्स आ गए. तो क्या हुआ? तो नंबर ऑफ रोज जो है वो घट गई. पहले 4 थी, अब 3 हो गई. अगेन total number is 12. That means total number of students remains the same. Okay. If 3 students are less in a row, अगर हम लेस कर दें तो रो बढ़ जाएंगी. चलिए एक और सिंपल सा एक और कर लेते हैं इसमें हम. अब मैं और स्टूडेंट्स को बढ़ा देता हूँ. तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. The number of students in each row is 6 and number of rows are 2. तो 6 into 2 that is 12 students ही. तो जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कम कर रहे हैं, हर रो से, तो नंबर ऑफ रोज बढ़ रही है. और अगर हम उल्टा लेके आए यहाँ पर कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कम हो रही है. So this is the question. But in all the situation, in all the cases, number of students remains the same. So this is based upon the previous concept only. If you increase the speed, time will be less. If you decrease the speed, time will be more. But distance remains the same. So based upon the same concept, we will solve this question. We will assume, let the question is find the number of students. Okay. So let the number of rows, let the number of students in a row be x and number of rows be y. Therefore number of students in the class will become x into y. ठीक है. अब पहली कंडीशन, what is the first condition? First condition is if 3 students are extra in a row. अगर हम स्टूडेंट्स की नंबर को हम बढ़ा दें तो x plus 3 हो जाएगा, x plus 3 and there would be 1 row less. तो y को एक कम कर दो. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, एक्स वाई के बराबर ही आएगा. जैसे हमने देखा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाने या घटाने से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो हर केस में 12 भी हैं, तो वो तो हमेशा 12 के बराबर ही आएंगे. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस. x into y, that is xy minus x plus 3y minus 3 is equal to xy. So again xy and xy cancel. तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई.
minus x plus 3y is equal to 3. Let's say this is first equation. Second condition क्या बोल रहे हैं? If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. अगर हम 3 students को कम कर दें तो x minus 3, there would be 2 rows more. 2 rows more. Y plus 2. But again the total number of students will remain the same, that is xy. X into y plus 2 into x minus 3y minus 6 is equal to xy. Xy and xy cancel. 2x minus 3y is equal to 6. Let this be second equation. First equation को second equation के पास लाते हैं ताकि solve कर लें. Minus x plus 3y is equal to 3. दोनों equation को हम add कर सकते हैं क्योंकि 3y cancel हो रहे हैं. So 2x minus x is x and 6 plus 3 is 9. So x is equal to 9. Put x is equal to 9 in first equation, that is minus 9 plus 3y is equal to 3, that is 3y is equal to 12, y is equal to 4. If y is equal to 4 and x is equal to 9, then number of students in the class will be x into y, that is 9 into 4, that is 36. Okay. So, okay. Let's see this question. In a triangle, angle C is 3 times angle B and is also equal to 2 times angle A plus angle B. एंगल C जो है वो एंगल B का 3 टाइम्स है और ये दोनों A प्लस B का ट्वाइस है. तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वी कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये तो हम लिख ही सकते हैं. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस वी कैन राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. अब एंगल C की जगह पर हम 3 टाइम्स एंगल B लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस B प्लस 3 टाइम्स एंगल B विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो A प्लस 4B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. दैट्स इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से ले सकते हैं, दैट इज 2 टाइम्स एंगल A प्लस B को हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स B, that is 2a plus 2b is equal to 3b, that is 2a minus b is equal to 0. okay. अब हम इसको सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये यहाँ 4b है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके लेके आते हैं हम 8a minus 4b is equal to 0. और first equation को we'll bring it down, that is a plus 4b is equal to 180 degree. Now you can add these two equations, that is 9a is equal to 180, that is a is equal to 20. Now if a is equal to 20, आप first equation में value put कर लो a की, that is 20 plus 4b is equal to 180 degree, that is 4b is equal to 160, that is b is equal to 40. अब या तो a प्लस b प्लस c में वैल्यू पुट कर लेते हैं. एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल a 20 है, एंगल b 40 है, एंगल c हम निकाल लेंगे यहाँ से, दैट इज 60 प्लस c इज इक्वल टू 180. सो 60 एंगल c इज इक्वल टू हो जाएगा 120. चेक कर लेते हैं, तीनों का सम 180 आ रहा है. यस, 20 प्लस 40 60 प्लस 120, यस 180 आ रहा है. और एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B. एंगल C 120 है, एंगल B 40 है, 40 इंटू 3 120 होता है. यस, इट्स करेक्ट. सो आंसर इज ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन,
what we have to discuss is question number 6. This we have already done previously in one of the exercises. Draw the graph of the equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and y-axis. तो रफली बता रहा हूँ मैं आपको एक ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ में ये दोनों लाइंस आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा. सपोज कि एक रफली बता एक ग्राफ ऐसा बना, ओके, और दूसरी लाइन का ग्राफ सपोज ऐसा बन रहा है. तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस ये वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन और ये दोनों लाइन से मिलके जो ट्रायंगल बन रहा है उसको शेड करके आपको ये ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, ए बी और सी. ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे आई होप. नेक्स्ट है, ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन. a minus b into x, first equation is a minus b into x plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square. Now second equation I am rewriting it as in the form of the standard form. तो a plus b से into कर रहे हैं, a plus b into x, a plus b into x, then a plus b into y, a plus b into y is equal to a square plus b square, and then we can change the signs because already the coefficients of y are same, so we can cancel this term and we can write this as a minus b minus a minus b. यहाँ पर ध्यान देना आपको क्योंकि a plus b है with a negative sign, so both are negative, into x. A square and a square cancel, minus 2ab and minus 2b square. अब इसको हम लिख सकते हैं a और a cancel हो गया, minus 2b times x. We can take minus 2b common here and we'll be left with a plus b. Minus 2b and minus 2b cancel हो गया, x is equal to a plus b. x की वैल्यू आ गई a plus b. अब आप x की वैल्यू a plus b दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं a minus b into x that is a plus b plus a plus b into y is equal to a square minus 2ab minus b square. Remember, a square minus 2ab minus b square is not an identity, तो इसको आइडेंटिटी मत समझ लेना. Definitely this is an identity, a minus b into a plus b, which is a square minus b square. So a plus b into y, a square minus 2ab minus b square. a square and a square cancel हो सकता है, minus b square से minus b square भी cancel हो सकता है, और y is equal to आ जाएगा आपके पास minus 2ab upon a plus b. So this is the answer. नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है आपको, और ये एक टाइप है क्वेश्चन का. देयर इज़ ए ट्रिक बिहाइंड इट. अगर आप एलिमिनेशन से करने जाओगे या किसी भी मेथड से करने जाओगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा आपको. इसकी ट्रिक और इसको समझने का तरीका ये है कि देखो, आप x का जो कोएफिशिएंट है 152 वो दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है. सिमिलरली जो y का कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो x का कोएफिशिएंट है. तो दिस गिव्स यू द हिंट कि आपको इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने का मेथड है पहले हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे. दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, LHS से LHS ऐड करेंगे, RHS से RHS ऐड करेंगे. तो LHS से LHS जब ऐड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा -266x minus 266y 226 है 2226. I'll cut it. One second, I'll write minus 2
और यहाँ पर 6 2 2 माइनस 2 2 6 एक्स माइनस 2 2 6 वाई और इज इक्वल टू, दोनों का हम ऐड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐड होगा तो आएगा माइनस माइनस 678 minus 678. Now see 26 into 3, 6 3s are 80, 78. अब देखो 26 into 3 करोगे तो 78 आ जाएगा और 200 into 3 करोगे तो 678. That means 226 is a factor of 678. So we can divide the whole equation by 226. So it will become x plus y is equal to 3. And this becomes your say third equation. तो सिंप्लीफाई हो गई। अब हम दोनों इक्वेशन को करेंगे माइनस 1 माइनस 2। जब दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये टर्म ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 5 दैट इज 12 13 एंड दिस विल बिकम 530 x और ये हो जाएगा माइनस 530y और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 604 माइनस 74 हो जाएगा विच विल बी 530। 530 से डिवाइड कर देते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन हो गई। अब हम थर्ड और फोर्थ को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 and putting x is equal to 2, y is equal to 1। एक रैंडम चेक कर लेते हैं, x is equal to 2 और y is equal to 1 आ रहा, तो इसमें x की जगह 2, y की जगह 1 पुट करते हैं। ये हो जाएगा 4 10 3 माइनस 378। 304 माइनस 378 इज माइनस 74, करेक्ट आ रहा है। ओके, now let's move to the next question, which is ABCD is a cyclic quadrilateral, find the angles of the cyclic quadrilateral। तो cyclic quadrilateral की आपको प्रॉपर्टी मालूम है। cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A और एंगल C का सम होगा 180 डिग्री। एंगल A कितना दिया हुआ है हमको दिया है 4y प्लस 20 और एंगल C हमको दिया हुआ है माइनस 4x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 160।